آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اور اچھے سامعین کرام موجود ہیں۔ بھائی اننت بہت دیر سے آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ بہت دیر سے یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ کا صبر کا پیمانہ تقریباً چھلکنے کو تھا جب مجھے آواز دی گئی ہے، اور اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہم مشاعرے کی طرف چل رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب فیضی رحمان صاحب جو آپ کے جانے پہچانے سماجی کارکن ہیں، دلی سے لے کر بہار تک ان کی جو خدمات ہیں وہ سب آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کورونا کے دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً، اور انہوں نے اس مشاعرے کو سجانے میں جو محنتیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اس مشاعرے کے مین اسپانسر ہیں عالی جناب یاسر امام صاحب ایم ڈی شیتل گرین سٹی، وہ بھی ڈائس پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آسمان شیر و ادب، ساہتیہ اور کویتا کے آکاش کے چاند اور ستارے آج آپ کے تاج پور کے اس گراؤنڈ میں سجے اس ڈائس پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ہم انہیں آواز دیں گے اور آپ انہیں سنیں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں جو ہلچل آپ کے بیچ میں ہے، بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ تو وہ ہیں جو 5 برس بھرشٹ سرکاریں برداشت کر لیتے ہیں، تو ہندی اور اردو کے نام پر تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اور آپ کے صبر کا امتحان نہیں لوں گا۔ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، نظر ملائیے مجھ سے تو کچھ کلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ تاج پور کے اچھے اور پیارے شروتاگن، محترم سامعین کرام، ہمارے ڈائس پر بھائی فیضی رحمان صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار نے آپ کے ٹیسٹ، آپ کے فلیور، آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات ہندوستان کے الگ الگ صوبوں سے چن کر یہاں اکٹھا کر دی ہیں۔ محترمہ نیہا سنگھ راٹھور صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے اردو منچوں کا ایک بہت ہی محترم نام ڈاکٹر ندیم شاد موجود ہیں، جن سے آپ سب واقف ہیں۔ بھائی ہاشم فیروز آبادی جو مشاعروں کے ڈائس پر جن کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ موجود ہیں۔ آپ کے بہار سے گنگا جمنی تہذیب کا پرچم لے کر پورے ہندوستان میں گھومنے والا وہ محترم نام جسے ہم شنکر کینوری کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور تمام محترم شخصیات، میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں پہ جو بھی ہے اپنی جگہ قیامت ہے۔ آپ جب ان سے ملاقات کریں گے تو آپ ذرا دیر میں وہ اپنے آپ کے کانوں سے ہوتے ہوئے آپ کے دلوں پر دستک دیں گے۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اور مشاعرہ شروع ہو جانا چاہیے۔ میں صرف چند نام لے لینا چاہتا ہوں جو معززین ڈائس پر موجود ہیں اور میری نگاہوں کے سامنے ہیں، جن کا تعاون اور سرپرستی اس مشاعرے کو حاصل ہے۔ ہمارے بیچ میں عالی جناب عزت مآب ماننیہ راجسو ایوم بھومی سدھار اور گنا منتری بہار سرکار عالی جناب آلوک کمار مہتا جی کچھ ہی دیر میں تشریف لا رہے ہیں، اور وہی اس کارکرم کی ادھیکشتا بھی کریں گے۔ اور ہمارے بیچ میں علی اشرف فاطمی صاحب موجود ہیں، ماننیہ پورو منتری بھارت سرکار، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ علی جناب ناگ مڑی جی پورو منتری، علی جناب سلیم پرویز صاحب چیئرمین مدرسہ بورڈ، جناب قاری سہیب صاحب ایم ایل سی آر جے ڈی، عزت مآب اختر الاسلام شاہین صاحب ایم ایل اے آپ کے جانے پہچانے، اور عالی جناب شری رن وجے ساہو جی ایم ایل اے موربا، جناب اختر الاسلام شاہین صاحب جو آپ کے محبوب ایم ایل اے ہیں سمستی پور کے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ شری رن وجے ساہو جی جو موربا کے ایم ایل اے ہیں، ان کی موجودگی ہمیں حوصلہ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ عالی جناب دانش علی صاحب ورشٹھ جے ڈی یو نیتا ہمارے بیچ میں ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ جناب فراز فاطمی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پورو ودھائک، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔
जनाब रामचंद्र सिंह निषाद साहब, पूर्व विधायक, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। भाई फैज साहब जो राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और उसके अलावा राम बालक पासवान जी, उप मेयर समस्तीपुर, और श्रीमती अनीता राम, मेयर समस्तीपुर, जो थोड़ी देर में हमारे बीच में तशरीफ ला रही हैं। हम राम बालक पासवान जी का बहुत इस्तकबाल करते हैं। और आखिरी लेकिन बहुत ही कीमती आली जनाब अफजल अब्बास साहब, शिया बोर्ड के चेयरमैन, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। मैं सिर्फ दो एक बातें अर्ज करके मैं सीधे सीधे आपका मुशायरा शुरू करना चाहता हूं कि ये तमाम मोहतरम शोरा जो हिंदुस्तान से लेकर अरब ममालिक तक और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बस्तियों में जाकर, जहां जहां हिंदी और उर्दू के जानने वाले मौजूद हैं, वहां पर जाकर के हमारी गंगा जमुनी तहजीब का उर्दू और हिंदी की कविताओं और गजलों के जरिए प्रचार करते हैं। हमारी जो आला कदरें हैं, जिन पर हमें फख्र है, उनका वहां पर जाकर के झंडा फहराते हैं, वो मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और ये मुशायरा शायरों और कवियों का है। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि कोई भी शायर हर मुशायरे में अपना खूबसूरत से खूबसूरत कलाम बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करता है और आपके पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन कोई भी मुशायरा, ये आप हैं, ये आपकी खूबसूरत समातें हैं, ये आपकी तालियों का शोर है, ये आपका जोश व खरोश है, ये आपकी तादो तहसीन है जो किसी मुशायरे को कामयाब बनाती है। तो मैं प्यार और मोहब्बत के, अमन और भाईचारे के इस मंच के लिए, उर्दू और हिंदी के इस खूबसूरत डाइस के लिए, इस खूबसूरत महफिल की कामयाबी के लिए आप तमाम साथियों का साथ मांगता हूं, क्योंकि आपके साथ के बगैर ये सफर मेरे लिए कर पाना मुश्किल है। और जाहिर सी बात है, जिन्होंने ये मुशायरा सजाया है, ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम की सफलता, कामयाबी उनको भी हौसला देगी और इस तरह की और महफिलें आरास्ता होंगी। तो क्या आप सब मुझे बताएं कि क्या आप सब मेरे साथ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह ये रात, मैं वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी की खूबसूरत तरीन रात होने वाली है। जैसे जैसे ये रात और भीगती जाएगी और हम आखिरी पहर की तरफ रुख करेंगे और हमारे बीच में तमाम शोरा होते हुए हम नेहा राठौर साहिबा और आपके महबूब तरीन शायर और आपके मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इज्जत-माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपसे रूबरू होंगे और वो मुशायरा उस मिराज तक पहुंचेगा जो आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में बहुत दिनों तक महफूज रहेगा। मैं चंद बातें बहुत 2 मिनट के अंदर करके मैं सीधे सीधे मुशायरा शुरू करना चाहता हूं। शायर ने कहा था, खुशी थी सबको, प्यारे साथियों जो खड़े हैं आपके भी मैं साथ चाहता हूं, और जो मेरे सामने इज्जत-माब पर्दा नशीन माए बहनें मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी भी हमें ताकत दे रही है कि हमारी आधी आबादी की नुमाइंदगी अगर डाइस पर हो रही है, चांदनी शबनम साहिबा के जरिए, नाजिया रिफत साहिबा के जरिए, निखत अमरोही साहिबा के जरिए और नेहा सिंह राठौर साहिबा के जरिए, तो इधर हमारी पर्दा नशीन इज्जत-माब माएं और बहनें भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी इन माओं और बहनों के लिए एक बार पुरजोर तालियां बजाएं, क्योंकि जब तक इनका साथ हमें किसी भी कार्यक्रम हो या हमारा समाज हो, हमारा घर हो, जब तक इनका साथ हमें न मिलेगा, इनकी दुआएं हमें नहीं मिलेंगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना हमारा घर, ना हमारा समाज, ना हमारा देश। तो हम आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। आइए, मैं अर्ज कर रहा था कि एक शायर ने यूं कहा कि खुशी थी सबको, नया आफताब निकलेगा। खुशी थी सबको, नया आफताब निकलेगा। किसे खबर थी ये कैदी का ख्वाब निकलेगा। लगा के आए हो जब पेड़ तुम बबूलों के, तुम ही बताओ कहां से गुलाब निकलेगा। मोहतरम हाजरीन, ताजपुर के प्यारे साथियों, अगर हम ये और आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें नफरत की फजाओं में सांस न लेकर के मोहब्बत, प्यार, अमन और भाईचारे की खुशबुओं से महकती हुई हवा में सांस ले सके, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाद आने वाले लोग जलते हुए घरों का धुआं, मजलूमों के जिस्मों पर पड़ी हुई खराशें और उनकी सिसकियां और उनके रोते हुए चेहरे और जलते हुए घरों को और उनकी तस्वीरों को न देखें जो हमें और आपको देखनी पड़ी है, तो हमें उसकी तैयारी आज और अभी से करनी होगी।
जिस तरह अंधेरे को दूर करने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम चिराग जलाएं, रोशनी करें, उसी तरह नफरत को खत्म करने का और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि हम मोहब्बतों के इतने चिराग रोशन कर दें कि नफरतें फैलाने वाले फिरका परस्त ताकतों को मुंह छुपाने की भी जगह न मिले। और मोहब्बत और प्यार के इन चिरागों को रोशन करने का एक बहुत प्यारा तरीका है कि हम उर्दू हिंदी की ऐसी मोहब्बत भरी प्यारी महफिलें सजाएं, जहां पर एक तरफ अगर डॉक्टर नदीम शाद मौजूद हैं, एक तरफ हाशिम फिरोजाबादी मौजूद हैं, एक तरफ कुछ ही देर में तशरीफ लाए आली जनाब इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब मौजूद होंगे, तो दूसरी तरफ हमारे साथ अर्जुन अक्ष समस्तीपुरी, आली जनाब शंकर कैमूरी और मोहतरमा नेहा सिंह राठौर भी मौजूद हैं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है जिसे लेकर के भारत हमेशा आगे चला है। तो अगर हमें यह चाहिए तो हमें ऐसी महफिलें आरास्ता करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी शायर या कोई भी कवि, आखिरी बात कह के मैं सीधे मुशायरे से आपसे जोड़ना चाहता हूं, बहुत कीमती बात, कि जब कोई शायर या कवि रात के अंधेरे में अपने कलम के नोक से कविताएं और शायरी, नज़में और गजलें रचता है, तो उस वक्त वो किसी हिंदू के या किसी मुसलमान के, किसी सिख या ईसाई के जज्बात को लफ्जों में नहीं उतारता, बल्कि वो एक खालिस इंसान के जज्बात और एहसासात को शायरी बनाता है, कविता बनाता है। और यही वजह है कि जब हम किसी शायर या किसी कवि से मुखातिब होते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, तो हमारे दिल में सोया हुआ वो जज्बा जागने लगता है कि हम सब किसी भी मजहब के होने से पहले, किसी भी जात, किसी भी समुदाय के होने से पहले हम एक इंसान हैं, और अपने करीब मौजूद दूसरे इंसानों से एक न दिखने वाले एक अदृश्य इंसानियत के अटूट रिश्ते में बंधे हुए हैं। और जैसे जैसे हम शायरी और कविता के नजदीक आते जाते हैं, हमारे दिल में मौजूद ये एहसास और ज्यादा बढ़ता जाता है और हम बेहतर से बेहतरीन इंसान बनते जाते हैं। मैं इस वक्त जिस तरह की नफरतें हमारे देश की फजाओं में फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे मौके पर इस खूबसूरत मुशायरे को आरास्ता करना अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ, काबिल दाद और काबिल तहसीन काम है, जिसके लिए मैं आली जनाब यासिर इमाम साहब MD शीतल ग्रीन सिटी, आपके जाने पहचाने समाजी कार्यकर्ता, समाजी कारकुन आली जनाब फैजी रहमान साहब और भाई तारिक रहमान बॉबी भाई को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं चाहता हूं इन हजरात के लिए एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। और यहीं से मैं मुशायरा शुरू करना चाहता हूं और बाकी गुफ्तगू हमारे आपके बीच में होती रहेगी।